The first FIR under Section Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 has been registered at Kamla Market Police Station in the national capital. The three new criminal laws come into effect from today. The case was and in fact has been registered against a street vendor under Section 285 of the Bharatiya Nyaya Sanhita for obstruction under footbridge of New Delhi railway station. According to the FIR, the accused has been identified as Pankaj Kumar, who is a resident of Bihar's Bahar. As per the FIR, he has been accused of selling tobacco and water on a cart near the main road, which was causing hindrance and trouble to commuters. When the police was in fact patrolling the area, they asked him to remove his cart. He ignored the officials. In fact, what I have over here, right here on my screens, and I'm going to request my PCR to pan and show you what I have over here. What I have in fact over here is the FIR that has in fact been lodged. It has been lodged right on your screens, viewers. The FIR has been lodged under the Bharatiya Nyaya Sanhita and specifically 2023 and specifically under Section 285. So this is of course the first FIR that has been lodged. It has been lodged in central Delhi. Of course, in Kamla Market, we can see that written right over here. The FIR number is also registered over here. Time and date of FIR is of course 1st July, which is today, and of course more details here given over here. When did this event take place? It took place on Monday, and a lot more details at the time, of course, also mentioned over here. It happened roughly around 12:15 at midnight, and of course more details over here given for you to purview. But this is of course the FIR that we are referring to. Remember, viewers, the three criminal laws have now taken effect, and in fact across the national capital, across the national capital, what we're learning at this point of time is that there are posters that have been put up outside police stations for people to of course be aware of the fact that these have now in fact taken effect. My colleague Ayush is in fact with us on the broadcast to give us more on this. Ayush, our viewers have just taken a look at the FIR that has been registered under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Section 285 to be specific. So of course we've given them an understanding on that front, but what more can you tell us at this point of time? Well, yes, as the new criminal laws take place today, the very first FIR under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita was registered in Delhi today against a street vendor, and he was charged under Section 285 of the BNS as well for obstructing a foot-over bridge at the New Delhi railway station and conducting sales. As per the details provided in the FIR, the accused was vending tobacco products and water from a cart positioned near the main road at the New Delhi railway station, resulting in obstruction and inconvenience to the passerby people. The police officers patrolling the vicinity requested the accused to relocate his cart, but he disregarded the instructions. And from now on, all FIRs will be filed under the provisions of BNS. However, cases registered before July 1, that today, will continue to be tried under the IPC and CRPC. Over to you. All right, Ayush, thanks for joining us on the broadcast, sharing all those updates with our viewers. Meanwhile, there are lots and lots of reactions that are coming in at this point of time. Take a listen. फायदा में नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही। सबसे ज्यादा फायदा में नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही। मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीजें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीसमील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि FIR आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे। चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स कर दी।
अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात मत करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की। अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते वो नहीं अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर बी लिंक मैजिस्ट्रेट, लिंक के भी लिंक तो तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी, इतने दो से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। सो हर चीज को एस्पेक्ट को कई चीजें मांगते जा रही हैं। The government had declared that it needs to create a new legal architecture as far as the criminal laws in the country were concerned. Governments do that from time to time, but the way the laws have been rushed into Parliament and the way the implementation is sought to be rushed through is not desirable in a democracy. These were not adequately discussed in the parliamentary committees, nor was there an extensive discussion about these bills in the House, nor were all the stakeholders consulted. The opposition has been demanding that this change in the legal architecture of criminal laws should be preceded by meaningful deliberations between all stakeholders. That appears not to have been done. And I think it is only in the fitness of things that when you change the legal architecture of criminal laws in the country which affect all citizens, there should be a wide consensus around those laws based upon informed discussion. It is only proper that this grievance of the opposition should be addressed by the ruling party, and it would serve the cause of effective legislation if the laws that are now sought to be introduced in the country have strong backing and political consensus. So हाँ, आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। प्रोफेसर रणवीर सिंह के चेयरमैन के अंडर एक कमेटी फॉर्म की थी विद रिगार्ड टू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। वो नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली के वाइस चांसलर थे और उसमें बहुत लोगों से सलाह की गई थी। मुझे लगता है कि इस नए कानून में जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं उसकी जो निचोड़ निकलती है उसको इन कानूनों में डाला गया है। प्लस ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूँ आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। हर चीज़ की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें BNSS में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज़ का
यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी। जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं, सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, तो एक नाम ती हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ और प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया है कि अगर आप एक ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं, और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। मेरे हिसाब से जो कानून 3 नए आ रहे हैं कल से, वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ ये पूरे कॉलोनियल इरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसमें ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई हैं, लो रेट्स हैं, बहुत डिलेड सिस्टम है, और एक तरफ से कॉलोनियल जो इम्प्रेशन है वो रहा है। तो 3 कानूनों से जो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, 3 कानून से, एक तो जो कानून की डेफिनेशंस हैं, जो न्याय संहिता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन है बच्चे का, चाइल्ड का, फॉर एग्जांपल, कि बच्चे को कैसे डिफाइन करना चाहिए। उसमें बच्चे को आज की तारीख में हम 18 साल का हर तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। महिलाओं की तरफ जो सारे कानून हैं, जिस प्रकार से उनको डील करना चाहिए, जहाँ उनके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पूरी हरासमेंट हो रही है, वायलेंस हो रही है, उनको किस प्रकार से डिफाइन करा जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.